Nice drive to mid-on for a single. Crucial match between Ace Warriors and GC Boys. Both are unbeatable in this tournament so far. We can expect a close contest today. Outside off, ball kept a bit low. Batsman couldn't judge the bounce. Dot ball. Nice ball. Through the bat pad gap. Clean bowled. Good start for Ace Warriors. Getting the key wicket of Mranal. Rahul, batsman कौन है? Batsman Shashank. Shashank Singh comes to the crease. He has had a pretty good tournament so far. All-round performance for GC Boys. Some suggestion from Captain Viren to the new batsman. That was a good length. Outside off. Just missing the bat. Batsman probably looking to open the face of the bat. Just missing it. That was fast and straight. Batsman trying to play it on the leg side. Straight to the fielder. Dot ball. Bowler Manoj Yadav has been very consistent in this tournament with his line and length. Another straight ball onto the leg. Missing the bat and a dot ball. It's been a tight over so far. Only one run coming off this over and one ball to go. There is some technical error. Score is updating a bit slow, but it's over. Yeah, 1 over, 1 run, 1 wicket. Vishnu, the new bowler. White ball on the leg side. Vishnu has been consistent for Ace Warriors.
Nice ball. Viren trying to slog it on the leg side, missing it completely. Just one run. That was lofted over mid wicket, and that's a MTTM maximum. Slightly short of length. Batsman picking the length perfectly and slogging it over deep mid wicket for a MTTM maximum. First boundary, first six of this match. This time on the offside. Extra weight provided by the bowler. Batsman making its making use of this width. Square drive through the covers for a boundary. Outfield is very fast here. Very difficult to catch the ball once it is struck from the batsman. Down leg side, too far from the batsman. It's a wide ball. Probably two boundaries disturbing the rhythm of the bowler. That was a good comeback. Good length on the offside. Batsman trying to steal a single there. Good fielding by Captain Karan. Managed to stop the single. Slightly expensive over to start off with for Vishnu. 13 runs coming from this over so far. Dot ball, huh? Batsman attempting a short front foot to the long off, single to keep the strike. So after 2 overs, it's 15 for 1. नहीं नहीं वीडियो फोटो मिस हो रहा है बोलो बोलो कौन है ठीक है वो ये स्टॉल पे राहुल बोलो कौन Javin into the attack. Outside off, straight to the covers. And we thank the food partners for today. Bombay Bites, providing us delicious food. Lofted towards long on. Thank you for our food partners. Sunil, just 1 minute. There's some technical error in the scoring. Yeah, we are done. We can start. So Jabin into the attack. Outside off. Viren trying to cut it
but managed to get a single there towards the point. Oh, that was probably too high. Umpires checking for. Okay, that was one bounce called. So one bouncer is allowed per over. One bounce called, and batsman taking review for this one. We have to check if it was too high, just in case if it was a wide. The ball was slightly high. But it's umpire's call, first bounce. Outside off, drive towards the sweeper for a single. Viren back into the strike. Jabin adjusting the field a bit, getting his deep cover. Outside off, drived through the long off for a single. That was a pretty good over. Just 4 runs coming out this over. So 3 overs, 19 for 1. After 3 overs, it's 19 for 1. Good comeback over by Ace Warriors, just giving away 4 runs. Viren has been in good form this season. Man of the match for last match against Mavericks. Played a pretty good innings and got 1 wicket in his all-round performance in the winning cause. Oh, that was pretty good from Aditya. Aditya is the co-captain of Ace Warriors, vice captain of Ace Warriors. That was lofted over, long on, straight down the ground for a big 6. That was in the zone for Viren, and he clinched the ball successfully and almost hitting the cameraman there. Down the leg now, it's wide ball. Looks like rhythm after the 6 is a bit spoiled for the bowler. Bowler coming around now. That was a good comeback ball. Change the side from around. There was a chance for overthrow, but covered well by the long off fielder. So managed to get only 1 run. They couldn't
utilize the overthrow. Trying to go big, but couldn't connect well. So 1 run towards short mid wicket there. That was a good ball. Viren trying to slog it towards leg side. Completely missing the ball. That was a good comeback by Adi. Karan is checking something with the umpire. Looks like there is some discussion over the line. Okay, we're back in the game. Full toss ball, and that was a bit messy in the field for a boundary towards square leg. Over completed 4 overs. 4 overs, 32 for 1. Captain of Ace Warriors, Karan, into the attack. Medium fast bowler, all-round batsman. Wide, outside off. Good call by Sunil, the main umpire. That was a good line and length by Karan. Batsman couldn't connect it. Inside edge onto the pads. Okay, leg by called, no bat involved there. So it was leg by. 1 run stolen. Quick single there. Close call. Appeal for run out there. Okay, review has been taken by Mr. Karan. Review for run out. Looks like a close call. नहीं है ना, बट हवा में है। और स्ट्रेट भी देख लो ना एक बार, हवा में है क्या देख, वो बड़ा करके थोड़ा जूम कर सकते हैं। फास्ट, हाँ हाँ ठीक है, हवा में है क्या? बैट नीचे लगा कि ऊपर है? लगा देखो, अभी देखो बैट नीचे है कि एयर में है? नहीं बेस उड़ गया ना, हाँ सही है, हाँ हाँ वही मोमेंट में से बाहर। It was a very close
Run out, it's out. Batsman falling very few inches out of the line when the bails came out. That was a crucial wicket. That was a very crucial wicket for Ace Warriors. Ashu is the new batsman. The replay was on the LED for the clarification. Batsman falling just very close when the bails came out, just falling short of the line. That was a dot ball. Straight back to the bowler. Attempt for a quick single there towards short square leg, but the fielder was quick and managed to stop the single. Hit another dot ball. DC boys look like slightly under pressure now after losing their openers. That was again straight towards the leg. There's no LBW in this league, so there's no call for LBW, but it was on the leg. So at the end of 5 overs, 34 for 2. GC boys losing their openers. Bit delay. There's some delay in the updates. Straight down the ground, back to the umpire, hitting the umpire. And there's an attempt for run out. Ashu managed to get back to the crease. Jabin is back into the attack. There. Ball hitting the leg. That was outside off, too far from the batsman. Umpire calling it wide.
Slog towards mid wicket. That was a boundary. That was a My Stamina boundary there. Well bowled and well caught. There was a thin edge outside off. Well collected by the keeper. Probably there was some change of pace from Jabin. Slower ball. The batsman couldn't read the pace. Thin edge and good catch by the keeper. बैट्समैन वो पाठक कुछ है ना दिखा रहे हो दिख रहा है क्या हाँ हाँ That was a very good off cutter ball by Jabin. Good crucial wicket there again. New batsman here, Mr. Patak. Trying for a slog there, outside off, completely missing the ball. Ball keeping a bit low. Didn't get the bounce the batsman expected. Not ball. Outside off, thick outside edge, running towards third man. Well collected. That was a good chase by Mayur. Managed to stop 2 runs there. So at the end of 6 overs, GC boys 41 for 3. Run rate is a bit low today. GC boys should try to capitalize the rest of the 4 overs to put up a big score on the board. Vishnu back into the attack. The first over was a bit expensive. Vishnu will try to recover here in his second over. Batsman trying to go out of the crease, front foot, but couldn't connect the ball. Stealing a single there from the short mid wicket. That was a good ball, straight and low. Couldn't connect the ball, couldn't time the ball. Batsman managed only to just dot ball. That was a full toss and it was slogged over mid wicket for 6. That was MTTM maximum. MTTM maximum. Batsman coming down the ground, connecting it quite well. Over mid wicket for a 6. MTTM maximum. That was lofted over short third man. Slight width there, outside off. The batsman slashed it over the inner field. Couple of bounces there before the ball hitting the boundary. That was My Stamina boundary. The boundaries are sponsored by My Stamina. Coming down the ground, trying to hit it hard towards the long off.
Managed to get a single there. Shashank back to the strike. That was a clean hit. Well connected. Well connected over deep square leg for a huge 6. MTTM maximum. After the end of 7 overs. After the end of 7 overs, it's 59 for 3. GC boys trying to accelerate here. They got 18 runs from this over. Pretty expensive over once again by Vishnu. We have to see how much GC boys will manage to put the score on the board. On an average, we have seen most of the matches being the score being around 90, with 93 being the top score so far. Manoj Kumar Yadav back into the attack, but slightly not getting the rhythm. Down leg side, wide. That was clean bowled. Bat pad gap, trying to slog it. Trying to clear his legs, the batsman, but completely missing the line of the ball through the bat pad. And Manoj managed to break the stumps there. Now we will have some Hindi commentary by the expert. Handing over to Dashrath, commentary box. सभी दर्शकों का स्वागत वीकेयर यांगो सुपर लीग 2 में। ये मनोज यादव काफी अव्वल दर्जे के बॉलर है, काफी अच्छी किफायती गेंदबाजी करती है। अच्छी गेंद पैरों पर लगी, लेकिन उसका फायदा उठाया कि सामने कोई फील्डर नहीं था। प्रदीप सिंह ने 1 रन चुरा लिया है। जीसी बॉयज का बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर तैयार मनोज कुमार यादव। काफी अच्छी मिश्रण करते हैं अपनी गेंदबाजी में, काफी दिक्कत होती है बल्लेबाज को खेलने में। और दिशाहीन गेंद, ये लेग साइड की दिशा में। अंपायर ने इशारा किया वाइड। थोड़ी सी कसरत करते हुए अंपायर सुनील सिंह, जिनका किट स्पॉन्सर किया है एवीज ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स। उछाल दिया उसे हवा में, यहां पर कैच ड्रॉप। यहाँ पर रनआउट का भी चांस हो सकता है, देखना होगा ये आउट या नॉट आउट। ये बहुत ही जबरदस्त अंपायर का इशारा, आउट। इसे कहते हैं कि कैच ड्रॉप, लेकिन विकेट मिल गया उन्हें। एक और सफलता मिली एस वॉरियर्स को। ये काफी कांटे की टक्कर है, दोनों टीमें अपने इस टूर्नामेंट की पहली 2 मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में अभी इस मैच में खेल रहे हैं। अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है जीसी बॉयज और एस वॉरियर। काफी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में। ये बहुत अच्छी सूझबूझ वहां पर फील्डर की तारीफ करनी होगी कि कैच ड्रॉप हुआ फिर भी उसने अपना कंसंट्रेशन नहीं खोया। फोकस किया है वहां पर, देखा कि वहां पर थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, उसका फायदा उठाया। मनोज कुमार यादव ने बखूबी साथ निभाया और नतीजा ये रहा कि एस वॉरियर को और एक सफल था। स्कोर है 62 रन पर 5 विकेट। ये 8वां ओवर चल रहा है इस इनिंग का। ये
वीकेआर वाईएसएल का आज का दूसरा मैच है। दोनों टॉप 2 टीम्स आज की तारीख में टेबल में जो टॉप नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद मुकाबला होगा मास्टर ब्लास्टर्स का एमएडी के साथ में। थोड़ी सी रूम उसे मारना चाहते थे कवर्स की दिशा में, किंतु टाइम नहीं कर पाए। गेंद जा पहुंची मनोज कुमार यादव के हाथों में, कोई रन नहीं। शशांक सिंह जो काफी अच्छे सेट हो चुके हैं, जीसी बॉयज को उम्मीद होगी कि वो एक अच्छा लक्ष्य सेटअप करे एस वॉरियर के लिए, क्योंकि एस वॉरियर अच्छी बैटिंग लाइनअप रखते हैं। बॉलिंग में जीसी बॉयज ने बहुत अच्छा स्क्वाड डेवलप करा है। और ये लेग की दिशा में उछाल दिया है, फाइन लेग की दिशा में बॉल जाती हुई 4 रनों के लिए। जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी पैरों में उसे पहले ही रीड कर लिया शशांक ने और पूरा फायदा उठाया। नतीजा 4 रन का इजाफा जीसी बॉयज के स्कोर में। निराश होंगे मनोज कुमार यादव की काफी अच्छे बॉलर है, थोड़ी सी दिशा भटक गए। बल्लेबाज भी बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, पूरा फायदा उठाया। यह मैच हो रहा है वीकेआर वाईएसएल के अंतर्गत एस वॉरियर और जीसी बॉयज के बीच। अच्छी वापसी, बल्लेबाज ने सम्मान दिया, अच्छी गेंद को डिफेंड किया। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। ओवर हो गया ना। 8 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब कप्तान खुद गेंद थामे हुए तैयार है अगली गेंद करने के लिए। ये इस इनिंग की सेकेंड लास्ट ओवर है। सुमित उनका सामना करेंगे जो अभी नए क्रीज पर आए हैं। देखना होगा कि आखिरी के 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाएंगे या नहीं। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए करण बंसल मनोज कुमार यादव को सर्कल में बुलाते हुए, किंतु मेरे ख्याल से फिर वापस भेज दिया है। थर्ड मैन को अंदर लिया है मयूर भुवड़ को। थोड़ी सी चौड़ा, वो चूक गए, गेंद थोड़ी नीची रह गई। सुमित थोड़ी सी उछाल एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे, किंतु गेंद थोड़ी नीची रह गई। नतीजा स्टंप निकल चुका है अपने बेस से और सुमित को पवेलियन लौट जाना होगा बिना कोई रन बनाए। काफी निराश होंगे सुमित। अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने पिछले 2-4 महीनों में हर एक फॉर्मेट में, उनसे उम्मीद थी, किंतु आज नाकामयाब। उनको रिप्लेस करेंगे किशोर वांदिले जो सामना करेंगे करण बंसल का, जो कि कप्तान है एस वॉरियर के। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उसे उछाल की उम्मीद रखी थी, थोड़ी नीची रह गई, चूक गए बल्लेबाज। इस समय नए बल्लेबाज को काफी दिक्कत होगी सेट होने में और जीसी बॉयज को चाहिए रनों की गति बढ़ाई जाए। आखिरी के 2 ओवर बचे हैं इस गेम के। फिर एक बार अच्छी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्लेबाज बीट हुए। काफी खुश होंगे करण अपने आप से, 2 गेंदें अच्छी डाली है। 4 अब 10 गेंदें शेष इस इनिंग की। ओहो, दिशा भटक कर वाइड। 1 रन का इजाफा। या आखिरी 2 ओवर बचे इस गेम के, इस इनिंग के। नए बल्लेबाज किशोर वांदिले सामना करेंगे करण बंसल का। फिर उसे मारने की कोशिश, चूक गए, कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद में। नतीजा गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में। करण बंसल तैयार। ये चौथी गेंद हो गई इस ओवर की, अब तक 3 गेंदें कर चुके हैं। अच्छी गेंद, उसे कवर्स की दिशा में धकेल दिया। थोड़े फील्डर दूर खड़े थे, 1 रन चुरा लिया है और जीसी बॉयज खुश हो गए कि अभी सेट बैट्समैन फिर से एक बार स्ट्राइक पे आ चुके हैं। इंतजार कर रहे थे पिछले 4 गेंदों से कि कब स्ट्राइक मिले, और क्रिकेट में सेट बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखा जाना फायदेमंद होगा जीसी बॉयज के लिए।
और ये बाहर की दिशा में गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया और अंपायर का डिसीजन 6 रन। ये रहा एमटीटीएम मैक्सिमम। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत रूम था, शायद छोड़ते तो वाइड जाती, लेकिन बैट्समैन बखूबी जानते हैं कि इससे बेहतर गेंद नहीं मिलेगी पॉइंट के ऊपर से 6 मारने के लिए, तो उन्होंने पूरा फायदा उठाया। जीसी बॉयज फिर एक बार जबरदस्त स्पीड कैप्चर करते हुए। ये ओहो, इम्प्रोवाइजेशन, स्कूप कर दिया उसे। रूहान बॉल का पीछा करते हुए बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद रोक ली। जब तक रोकते 2 रन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ 90 ओवर की समाप्ति। शशांक जो कि काफी आत्मविश्वास पूर्ण लग रहे हैं, बिना कॉन्फिडेंस के कोई इतना इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता, इसका मतलब है कि काफी अच्छे फॉर्म में है। उन्हें गेंद काफी अच्छी तरह से दिख रही है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बॉलर कहाँ गेंद करेगी। ये एक निशानी होती है महानतम बल्लेबाज की कि वो भाप रहे हैं कि करण बंसल अब कौन सी गेंद करेगी। इससे पहले आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाउंड्री खा चुके थे, तो उन्हें पता था कि गेंद स्टंप पर या लेग की दिशा में आएगी। अब ये इस इनिंग के आखिरी ओवर, करण बंसल अपनी कैप सुनील को गिफ्ट देते हुए फिर वापस ले लिए कैप। क्या ये वैलेंटाइंस डे गिफ्ट था अंपायर को? उन्होंने मना कर दिया। आखिरी ओवर करेंगे आदित्य केडिया। बैकफुट पर जाके उसे कवर्स की दिशा में पंच कर दिया। सूझबूझ यहां पर किशोर वांदिले द्वारा सेट बैट्समैन को स्ट्राइक दी है, जो कि काफी जरूरी है जीसी बॉयज के लिए कि लक्ष्य बड़ा खड़ा किया जाए। ओहो, अच्छी गेंद, उसे लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, चूक गए। थोड़ी सी धीमी गेंद, लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, चूक गए पूरी तरह से। ये आगे बढ़कर मारने की कोशिश की, गेंद काफी तेजी से लॉन्ग, और ये ओहो हो, ये रनआउट हो सकता था। एक स्लॉपी फील्डिंग बोल सकते हैं। आदित्य केड़े काफी बड़ा मौका था कि विकेट लिया जाए, 1 रन कम किया जाए, किंतु पूरी तरह से चूक गए। काफी तेजी से गेंद गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, किंतु उसे विकेट में तब्दील नहीं कर पाए। ओहो, थोड़ा सा फिर से एक बार रूम बना अपने लेग साइड की दिशा में मिड विकेट की ओर से। ये 6 रन, बाउंड्री, माफी चाहता हूं, बाउंड्री अंपायर का इशारा। ये रहा माय स्टैमिना बाउंड्री। थोड़ा सा शफल किया, ऑफ स्टंप पर चले गए और लेग की दिशा में उसे खेल दिया है 4 रनों के लिए। ओवर के आखिरी 3 गेंदें बची है। जीसी बॉय चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे। लास्ट 2 बॉल्स, ओके, आखिरी 2 गेंदें। वही एस वॉरियर चाहेंगे कि कम से कम स्कोर पर रोका जाए जीसी बॉयज को, क्योंकि जीसी बॉयज भी जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है, इतना आसान नहीं होगा कोई भी लक्ष्य का पीछा करना। ओह, अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची रही, थोड़ी सी रूम थी, अगर उछाल होता तो शायद बल्ले से संपर्क हो पाता, किंतु थोड़ी सी धीमी होने के कारण उछाल नहीं मिली उसे। बीट हो चुके हैं और ये डॉट बॉल, काफी खुश होंगे एस वॉरियर। अब ये इस इनिंग की आखिरी गेंद, आगे बढ़कर उसे लेग साइड की दिशा में फ्लिक कर दिया है। वहां पर अनुज डागर मौजूद, फील्ड कर लिया, गेंद थ्रो कर दिया है बॉलर के यहाँ पर, और जबरदस्त अच्छी सूझबूझ वहां पर डागर जी द्वारा। इसी के साथ पहले पारी की समाप्ति। स्कोर है 84 रन्स। अगर एस वॉरियर को ये मैच जीतना है तो उन्हें 85 रन, 85 रन स्कोर करने होंगे। ये काफी डिफेंडेबल स्कोर है। मैच दोनों ओर इक्वली बैलेंस्ड, दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में, दोनों टीमों ने अपने पहले दोनों मैचों में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, अच्छी जीत हासिल करी है उन्होंने। काफी अच्छा मुकाबला होगा, देखना होगा।
Fecal Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးကာစတမာများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Fast Delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekhana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekhana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. ။နာကျင်ကြိုက်ခဲဝေဒနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိုဒီရဲ့ Far Infrared Blaster ။ဟာလျှော်ချွေးနေပါလား။ဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး royalty Fecal Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးကာစတမာများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Fast Delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekhana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector,
and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. In addition to trading activities, Shekana Overseas also manufactures a wide range of products, including spices, atta, and other household items. Known for fast and reliable services, Shekana Overseas has built strong connections with leading business firms across Myanmar. मुकाबला हो रहा है एस वॉरियर्स 2 मिनट रुकिए। मयूर अभी तक रजिस्टर नहीं किया क्या? अरे लेकिन डेली डेली वही। तो ये पहली इनिंग खत्म हो चुकी है, अभी दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। क्या बॉल चाहिए? क्या प्ले? रेडी रेडी रेडी। स्कोरर रेडी, कैमरा रेडी, लेट्स गो। ये मुकाबला होने जा रहा है जीसी बॉयज और एस वॉरियर टेबल टॉपर और नंबर 2 के बीच में। दोनों टीमें काफी अच्छी लय में, फॉर्म में है, काफी काटी की टक्कर होगी। जीसी बॉयज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर किया 84 रन्स, 85 रन्स का लक्ष्य रखा है एस वॉरियर के सामने। दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में, काटी की टक्कर होगी। पहली ओवर करेंगे कप्तान वीरेन। और थोड़ी आगे से गेंद उसे प्लेस कर दिया है, पॉइंट के फील्डर ने उसे फील्ड किया, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत वीरेन द्वारा। जबीन जो अच्छी फॉर्म में है, आज थोड़े ओपनिंग में बदलाव किया है इस वॉरियर ने, उसका साथ देंगे मयूर भुवड़। फिर एक बार अच्छी गेंद उसे प्लेस कर दिया, फिर एक बार पॉइंट्स की दिशा में अच्छी फील्डिंग भेरू द्वारा। भेरू जो जाने जाते हैं कि नबी की कैच बार बार लपक लेते हैं, उसकी कैच बिल्कुल छोड़ते नहीं। आज भी पॉइंट में वही दर्शा रहे, कोई गेंद नहीं छोड़ रहे, डॉट पे डॉट। पहली 2 डॉट गेंदें खेलने के बाद उसे आगे बढ़कर लेग साइड की दिशा में ऊपर किया, कैच ड्रॉप। अच्छा एफर्ट था, थोड़ी मुश्किल थी, बॉल तक पहुंच तो पाए किंतु उसे परिणाम नहीं दे पाए, फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। 1 रन ले लिया, लेकिन काफी अच्छी एफर्ट मानी जा सकती थी
सर्टनली अगर हाथ को नहीं लगती तो चौका हो सकता था। कैच ड्रॉप हुआ लेकिन अपनी टीम के लिए 3 रन भी बचाए उन्होंने। वीरेन यहाँ पर थोड़ी सी गुड लेंथ गेंद की, उसे लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे मयूर, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ बल्ले से। शॉर्ट लेग के फील्डर ने उसे फील्ड कर फिर एक बार डॉट गेंद में कन्वर्ट किया। वीरेन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए काफी रिदम में नजर आ रहे हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, लेग की दिशा में खेलना था, फिर एक बार कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद के बीच में। नतीजा मृणाल जो कीपिंग कर रहे हैं उनके दस्तानों में गेंद और एक डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत मानी जा सकती जीसी बॉयज के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज वीरेन अपनी पेस लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। इस बार थोड़ी दिशा से भटके लेग साइड की दिशा में। अंपायर का निर्णय है वाइड गेंद। एवीज प्रेजेंट अंपायर किट। थोड़ी सी कसरत करते हुए सुनील जी, यूनिवर्सल अंपायर। ओहो, फुलर लेंथ थोड़ी सी, फिर एक बार लेग के दिशा में खेलना चाहा मयूर ने, कोई रन नहीं। मयूर इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति। एस वॉरियर का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया और किफायती ओवर रहा जीसी बॉयज के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार शशांक। वीरेन अपने गेंदबाज के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए, कुछ टिप्स देते हुए कि किस तरह से पिच है आज, किस तरह से हवा है। जबीन सामना करेंगे शशांक का। मानना पड़ेगा जीसी बॉयज ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का लाइनअप बिल्ड किया है। पिछले मैच में मैवरिक्स अगेंस्ट उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा था बॉलिंग की डिपार्टमेंट में। एस वॉरियर भी काफी अच्छी फॉर्म में है। ये पहला ओवर था इस पारी का। एस वॉरियर लक्ष्य का पीछा कर रहे, उन्हें जीतने के लिए चाहिए 85 रन। अब तक 2 रन बना चुके हैं। ये दूसरी ओवर बॉलिंग करेंगे शशांक, उनका सामना करेंगे जबीन। थोड़ा सा शफल किया ऑफ की दिशा में, वहां पर फाइन लेग की, वहां पर दादा ने फील्ड किया। तब तक 1 रन ले चुके हैं। स्ट्राइक पर होंगे मयूर भुवड़, जो काफी स्ट्रांग है अपनी लेग की दिशा में। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मयूर भुवड़। लंबा चौड़ा कद, बहुत ही शक्तिशाली बल्लेबाज। लेग की दिशा में खेलना था किंतु फील्ड विकेट कीपर ने उसे फील्ड कर लिया। ये दूसरा ओवर है वी केयर वाईएसएल का। आप तक इसका सीधा प्रसारण। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, थोड़े से जज नहीं कर पाए उसे, गेंद गई कीपर के दस्तानों में। ये इसका सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है रॉयल ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल द्वारा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सारे स्पॉन्सर्स का। उनके बिना ये टूर्नामेंट नहीं हो पाता। काफ़ी बड़े स्तर में टूर्नामेंट होने जा रहा है। हम म्यांमार क्रिकेट फेडरेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार शशांक, सामना करेंगे मयूर। ओहो, थोड़ी सी दिशा भटके, वहां पर लेग में खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं। लेग साइड की दिशा में बॉल थी, उसे वाइड करार दिया है अंपायर सुनील ने। उनका साथ दे रहे हैं मिस्टर गोम्स, जो काफी अनुभवी है श्रीलंका से। फिर एक बार वही शॉट दोहराने की कोशिश, लेकिन इस बार वाइड नहीं, फेयर डिलीवरी। मयूर चूक गए और नतीजा डॉट गेंद। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी करी है जीसी बॉयज ने अब तक। ये दूसरा ओवर है, थोड़ी जल्दबाजी होगी लेकिन फिर भी अगले पिछले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने। फिर एक बार डॉट गेंद। जबीन थोड़ी सी बात करते हुए मयूर से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर है 4 रन एस वॉरियर्स का। अच्छी शुरुआत जीसी बॉयज द्वारा।
हम हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है वी केयर फार्मेसी, रॉयल ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है, उन्हीं के कारण आप इसका सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं। कोरिएंडर लीफ हमारे फूड पार्टनर, उसी के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया इस टूर्नामेंट में, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस टूर्नामेंट में। अगली ओवर लेकर तैयार जितेंद्र पाठक, जो जबरदस्त तेज गेंदबाजी करते, काफी लंबा रनअप। ये तीसरा ओवर, सामना करेंगे जबीन, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। देखना होगा इस ओवर में पलड़ा कहां पर जाता है। थोड़ी सी फील्डिंग में संतुष्ट नहीं है जितेंद्र जी। फिर एक पैरों में टकराई गेंद, उसे लेग में खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की दिशा में दादा ने फील्ड किया, लेकिन तब तक एक रन पूरा हो चुका है। काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं जीसी बॉयज। तो मैं अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद दे रहा था, गरुड़ा लुब्रिकेंट्स, जो कि जर्सी आप इतनी सुंदर क्वालिटी जर्सीज जो देख रही है, इट्स बिकॉज ऑफ गरुड़ा लुब्रिकेंट्स। थोड़ी सी फुलर लेंथ, उसे कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा बाहरी किनारा और गेंद गई पॉइंट के फील्डर के हाथ में। मृणाल भाई काफ़ी अच्छे फील्डर है, कोई चूक नहीं, डॉट गेंद। काफ़ी खुश होंगे जीसी बॉयज, अच्छी शुरुआत दी है उन्होंने अपनी बॉलिंग में। शेखाना ओवरसीज और डिवीजन फार्मा, ओहो अच्छी गेंद वहां पर। फिर एक बार चूके मयूर, उसे रन में कन्वर्ट करने में, और एक डॉट गेंद। तो मैं करता शेखाना ओवरसीज और डिवीजन फार्मास्यूटिकल, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है विजय शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया इस टूर्नामेंट के लिए, आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ विपिन गुप्ता जी, गोल्डन मून कंपनी लिमिटेड, हमारे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने स्पॉन्सर किया है, धन्यवाद विपिन जी। रॉयल क्रोटॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स, काफ़ी विश्वसनीय नाम टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में, म्यांमार में। टिकटिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यश बगाड़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अगली गेंद का सामना करेंगे मयूर, जितेंद्र फाटक काफ़ी अच्छे रिदम में, काफ़ी लंबा रनअप। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है गैप में, लेकिन नहीं, फील्डर मौजूद वहां पर। फुल टॉस गेंद थी, उसे बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकामयाब मयूर। एक रन जरूर लिया, इस कारण जबीन को स्ट्राइक मिला है। वो सामना करेंगे इस टूर्नामेंट के वन ऑफ दी गुड बॉलर, जो अब तक जो खोज है इस टूर्नामेंट की, नए बॉलर जितेंद्र पाठक बॉलिंग करेंगे जबीन को। उसे लेग साइड की दिशा में उछाल दिया है और लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने उसे फील्ड कर दिया है। संपर्क नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं कर पा रहे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं जबीन। जानते हैं कि थोड़ा एक्सेलरेटर पे पैर दबाना पड़ेगा अगर रनों की गति बढ़ानी है तो। अब मुकाबला करेंगे मयूर, बॉलर है जितेंद्र पाठक। वो अंदरूनी किनारा, काफी अनलकी कहा जा सकता है बॉलर के लिए, लेकिन खुश होंगे इस वॉरियर, जैसे भी आए रन महत्वपूर्ण है इस समय पर। 4 रन, ये पहला चौका है मेरे ख्याल से इस इनिंग का। इनसाइड एज और फाइन लेग की दिशा में 4 रन, ये रहा माई स्टैमिना बाउंड्री। सो वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, ड्रिंक स्पॉन्सर, वाटर ब्रेक स्पॉन्सर, माई स्टैमिना multivitamin capsules and syrup, our maximum success sponsor MTTM integrated shipping company, Eco Asia our nutrition sponsor, AV's online Indian grocery store, Fine Plywood, करण बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रॉयल TMT जिन्होंने थोड़े से कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमें सपोर्ट किया, जो स्कैफोल्डिंग खड़े करने में, धन्यवाद। रंगून सिनेप्लेक्स, वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, थैंक यू सो मच। अगली ओवर करेंगे आशु, बाएं हाथ के गेंदबाज, मुकाबला करेंगे जबीन।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अशु। जबीन ने थोड़ा सा शफल किया और ये चौका, डीप स्क्वायर लेग में चौका, काफी अच्छा शॉट जबीन द्वारा। थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया, वॉक किया, शफल किया और लेग साइड में उसे मार दिया है। 4 रन। थोड़ी सी खुशी की लहर एस वॉरियर के खेमे में। बैक टू बैक बाउंड्रीज कहा जा सकता है उसे। लास्ट ओवर के आखिरी गेंद पर बाउंड्री चली गई, इस ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री। आशु जिन्होंने पिछले 2 मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर एक बार उन्हें शफल किया और इसे, ये रहा एमटीटी मैक्सिमम। कैच हो सकता था, कोशिश पूरी की, लेकिन किंतु हाथों से लगकर गेंद सीमा रेखा के बाहर और ये कहलाएगा एमटीटीएम मैक्सिमम। थोड़ी उत्साह यहां पर एस वॉरियर के खेमे में, खुश होंगे। बाउंड्री, बाउंड्री, सिक्सर, मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होता हुआ, रनों की गति बढ़ती हुई, जिसकी काफी जरूरत थी। पिच पहले 2 ओवर अच्छी बॉलिंग रही जीसी बॉयज द्वारा। वहां पर कप्तान थोड़ी बात करते हुए अपने गेंदबाज से। और एस वॉरियर से जब इनको बहुत शाबाशियां मिलती हुई। गोल्डी हेल्थ केयर, थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग अस। ओहो, इस बार फिर एक बार मारना चाहते थे, लेकिन काफी बाहर गेंद। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। शायद ये मोमेंटम शिफ्ट करने वाला ओवर हो सकता है इस वॉरियर के लिए। आशु को वापसी करनी होगी। फिर एक बार वहां पर मारना चाहे, लेकिन ओहो हो, थोड़ी सी गेंद लग गई। उसे क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। ओहो, उछाल दिया इसे। देखना होगा अंपायर क्या इशारा देते हैं। ये 4 रन। ये रहा माई स्टैमिना चौका। जबीन थोड़े से घायल हुए थे इस आखिरी गेंद पर, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक किया है, अच्छा कम बैक किया है, ये काफी महंगा ओवर साबित हुआ जीसी बॉयज के लिए। उतना ही फायदेमंद एस वॉरियर के लिए। पहली 2 ओवर में काफी स्लो स्टार्ट हुई थी एस वॉरियर की, अभी वापसी करते हुए। थोड़ी सी धीमी गेंद, उसे वेट किया, उसे खेल दिया है ऑफ साइड की दिशा में। डीप पर फील्डर ने, रवि ने उसे फील्ड कर लिया है। 1 रन, स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। जबीन जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, चौके छक्के, उसके सिंगल का अच्छा मिश्रण। और ये लेग में खेलना चाहते थे।
शायद इसी ओवर की तलाश थी एस वॉरियर को अपना मोमेंटम गेंद बैक करने के लिए। काफी महंगे साबित हुए आशु, जो पहले 2 मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन किंतु मेरे ख्याल से आज थोड़े से लय में नजर नहीं आए। फुलर लेंथ गेंद सुमित द्वारा, नए गेंदबाज, इन अंदरूनी किनारा वहां पर फील्डर ने उसे फील्ड किया, लेकिन सिर्फ 1 रन ले पाएंगे। अच्छी फील्डिंग दादा तो द्वारा। जबीन काफी अच्छे फॉर्म में है, नजर आ रहे हैं। आखिरी ओवर में बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने अपनी टीम के लिए जोड़ पाए। शॉर्ट ऑफ द लेंथ, मयूर भी अब अपना जलवा बचाते हुए, अंपायर का इशारे 4 रन वहां पर। डीप स्क्वायर लेग में कोई फील्डर नहीं, काफी बड़ा गैप था, उसका फायदा उठाया मयूर ने। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद रह गई, उसे भाप लिया, बैकफुट पर जाकर उसे धकेल दिया इस गैप में। 4 रन का इजाफा एस वॉरियर के खाते में। थोड़ा सा मोमेंटम एस वॉरियर के खेमे में। ओह, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पैरों पर गेंद टकराई। अगर एलबीडब्ल्यू होता तो शायद काफी क्लोज होता, किंतु इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छी वापसी सुमित द्वारा। मयूर अक्रॉस द लाइन जाके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक बार चूक गए। शॉर्ट गेंद, तकनीकी खराबी थी थोड़ी, हम लोग जनरेटर पे स्विच हो रहे थे, इसलिए कारण थोड़ी सी रुकावट थी गेम में। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है वी केयर फार्मेसी प्रस्तुत यंग ऑन सुपर लीग 2 में, जो आप तक सीधा प्रसारण होने जा रहा है। स्टार्ट करें। वी आर ऑन लाइव, वी आर ऑन एयर। ये दोनों टीमें से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, थोड़ा समय की पाबंदी को फॉलो किया जाए। जबीन, बैट्समैन मयूर एज वेल एज जीसी भाई वीरेन जी, प्लीज जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइए। हमने ऑलरेडी ये ब्रेक अननेसेसरी है, प्लीज अंपायर्स मैच शुरू किया जाए। ये मुकाबला होने जा रहा है राइट एंड ब्राइट स्पॉन्सर्ड जीसी बॉयज और रॉयल कोटन स्पॉन्सर्ड एस वॉरियर के बीच। काफी अच्छी शुरुआत की थी जीसी बॉयज में, किंतु 3rd ओवर में थोड़े से ज्यादा रन आ गए, लेकिन जीसी बॉयज बखूबी जानते हैं वापसी करना। काफी अच्छी गेंदबाजी है वहां पर उनके पास, काफी अच्छा लाइनअप है गेंदबाजी में। उसी के साथ एस वॉरियर काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, किंतु अच्छी वापसी कर ली है। जब इन सेट नजर आ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं मयूर भुवड़। अब गेंद अपने हाथों में ले ली है कप्तान खुद वीरेन। अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने, ये काफी अच्छा संकेत होता है कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने देखा कि पिछले ओवर में थोड़ा सा मोमेंटम जा रहा है इस ओवर की ओर, मेरी टीम के लिए मुझे वापसी करनी है तो मुझे आना होगा। गुड लीडरशिप स्किल बाय वीरेन। अब ये मुकाबला देखने लायक होगा वीरेन और जबीन के बीच। दोनों अच्छे फॉर्म में, दोनों अच्छे लय में, दोनों सेट है।
ओहो, ये उछाल दिया हवा में, देखना होगा। और ये 6 रन। फील्डर को प्लीज देखिए। बहुत बहुत बढ़िया शॉट, अच्छा संपर्क। उसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं फील्डर के लिए भी। काफी अच्छी कोशिश करी उन्होंने, लेकिन गेंद काफी दूर थी, सीमा रेखा से बाहर नहीं रोक पाए। आगे बढ़कर मारने की कोशिश, आउटसाइड एज, वहां पर थर्ड मिनट की दिशा में गेंद, 1 रन लेने में कामयाब। अब सामना करेंगे मयूर। जबीन एक युवा बल्लेबाज जो बांग्लादेश से है, जहां पर टेप बॉल खेली जाती है। अच्छी गेंद वीरेन द्वारा, डॉट गेंद वापसी करते हुए वीरेन इस ओवर में। अच्छा शॉट था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, 1 रन। फिर से एक बार मैन इन फॉर्म जबीन स्ट्राइक पर। अच्छा डिफेंस, अच्छी गेंदबाजी वीरेन द्वारा। पूरा सम्मान देते हुए जबीन प्लेस कर दिया है उसे, कोई रन नहीं। पहली गेंद के पर 6 के बाद अच्छी वापसी करी है वीरेन ने। हम अपने आज के फूड पार्टनर बॉम्बे बाइट्स, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। काफ़ी डिलीशियस स्नैक है, आप स्टेज के बाई ओर जाकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। टुडे स्टॉल बाय बॉम्बे बाइट्स। मैच की शुरुआत की जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो स्क्रीन पर नाम दिखाई जा रहा है विजय शेखावत, वहां पर मयूर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मयूर ने क्रिक हीरोज पे रजिस्टर नहीं किया था, इस कारण विजय शेखावत के अकाउंट में स्कोर जा रहा है। तो थोड़ा वो जो कंफ्यूजन था आपको क्लियर कर रहा हूं। क्रिक हीरोज में आपको रजिस्टर करना होता है, तो मयूर रजिस्टर नहीं थे, इस कारण विजय शेखावत का नाम है उस स्क्वाड में। दर्शक इसकी नोट करें, प्लेयर्स इसका नोट करें। मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम थोड़े धीमे जा रहे हैं, कृपा करके गेम जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। इसके बाद भी एक मैच है, हम थोड़े धीमे चल रहे हैं, कृपा करके मैच जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। लेग की दिशा में गेंद, उसे गैप में धकेलने में कामयाब, डीप स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर नहीं। नतीजा 4 रन। अब मयूर भी थोड़ी थोड़ी लय पकड़ते हुए जबीन का साथ देते हुए, अच्छा स्कोर 56 रन 6 ओवर की 6.1 ओवर्स के बाद। बॉलिंग करे शशांक सिंह। एस वॉरियर को जीतने के लिए चाहिए 29 रन, 29 रन रिक्वायर्ड इन 22 बॉल्स।
फिर एक बार वही शॉट दोहराने की कोशिश, चूक गए, अच्छा संपर्क नहीं, नतीजा और एक डॉट बॉल। जीसी बॉयज को विकेट की दरकार है यहाँ पर, उन्हें अगर मैच में वापसी करें तो विकेट चाहिए होगा। उनके पास वो गेंदबाज है जो विकेट ले सकते हैं। थोड़ी सी बाहर गेंद, नतीजा एक्स्ट्रा रन, अंपायर का नतीजा वाइड। थोड़े से नाखुश गेंदबाज, किंतु अंपायर सुनील जो काफी अनुभवी अंपायर है, बाबा बटुकनाथ के बड़े भक्त है वो, और ये उसे खेलना चाहते थे कवर की ओर से, गेंद गिरकर थोड़ी सी बाहर चली गई, कोई संपर्क नहीं, पूरी तरह से चूके मयूर, गेंद सीधा विकेट कीपर वीरेन के दस्तानों में। अंपायर्स कृपया करके ड्रिंक्स ब्रेक अलाउ ना करे, बहुत फ्रीक्वेंट ड्रिंक ब्रेक लिया जाए। अंपायर्स प्लीज समय का पालन कीजिए, सारे दोनों टीमों के कप्तान से हमारी गुजारिश है कि समय का पालन करें। इसके बाद म्यांमार एकेडमी टीम के मैचेस है, ये प्लेयर्स म्यांमार नेशनल से, उन्हें लेट जाने में घर पे काफी दिक्कत होती है। आई होप आप सब इसका सम्मान रखेंगे। अगली गेंदबाज जितेंद्र पाठक, काफी तेज गेंद, बहुत जबरदस्त गेंद थी ये, पूरी तरह से चूके मयूर पूरी तरह से चूक गए। जितेंद्र पाठक, काफी जबरदस्त रिदम है इनका, काफी एथलेटिक रनअप है, उन्हें विकेट लेना होगा अपनी टीम के लिए। और ये वाइड का इशारा अंपायर का, कैप्टन और कीपर और बॉलर नाखुश, उन्होंने रिव्यू कर दिया है वाइड का डिसीजन। रेफर टू द थर्ड अंपायर, देखना होगा थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या है, वाइड या नॉट, नो वाइड और अ फेयर डिलीवरी। ओवर टू यू थर्ड अंपायर।
बढ़िया फील्डिंग सुमित के द्वारा। यहाँ पर एक मौका बन चुका था किंतु गेंद काफी तेज थी, उसे रोक तो लिया किंतु विकेट में तब्दील नहीं कर पाए। स्ट्राइक पर होंगे जबीन। आगे बढ़कर मारने की कोशिश, गेंद टकराई उनकी थाइस पे। अंपायर का इशारा लेग बाइज। स्कोर बोर्ड अच्छी तरह से आगे बढ़ता हुआ एस वॉरियर के लिए। 7.3 ओवरों में स्कोर है 61 रन बिना किसी नुकसान के। ओहो, थोड़ा सा रूम बनाकर कवर्स की दिशा में मारने की कोशिश थी, फिर एक बार चूक गए। ये मैच अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है, कहीं पर भी जा सकता है। 14 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। एस वॉरियर नीड्स 24 runs in 14 balls. Match is still balanced. It can go anywhere. Both the teams are capable of giving a good fight. ओ स्लॉग में डाली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ वाली गेंदबाजी। कोई मौका नहीं दे रहे, कोई रूम नहीं दे रहे। सिर्फ एक रन इस गेंद से। क्या ये जीसी बॉयज के लिए निर्णायक और हो सकता है? क्या मोमेंटम अपनी ओर खींच पाएंगे? अब 4 गेंदों में तो 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में तो अब तक अच्छी वापसी करी है पाठक जी ने। आगे बढ़कर मारने की कोशिश, अच्छी फिर से अच्छी गेंदबाजी, पर फील्डिंग में यहां पर चूके। शायद डॉट, ओहो, और एक बार वही गलती। ओवर थ्रो में एक और एक्स्ट्रा। काफी नाखुश गेंदबाज, अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। फील्डर से इस बार सहयोग नहीं, इट्स नॉट अलाउड प्लीज विजय भैया। अंपायर का सम्मान रखें, कृपा कीजिए। ये 8 ओवर के बाद स्कोर है 64 रन, 64 runs at the end of 8 over. Now they need 21 runs in 2 overs. मयूर रिटायर्ड आउट। अब उनको रिप्लेस करेंगे विष्णु, जो काफी अच्छे फॉर्म में लास्ट दोनों मैच के मैराथन मैच रह चुके हैं। अच्छी बॉलिंग करी, काफी ऑलराउंड, अच्छा ऑलराउंड परफॉर्म किया है विष्णु ने। अब गेंदबाजी पर आया है मृणाल खजूरिया, जो कि उप कप्तान है जीसी बॉयज के। अच्छी सेंस है, क्रिकेटिंग सेंस इनके पास। ओहो, अच्छी गेंद, पहली गेंद। उसे लेग की दिशा में खेलना था, चूक गए। अपने शरीर पर लगी गेंद, अंपायर का इशारा। लेग बाइज। शायद अंपायर कह रहे कि आपके कारण मेरा विजन ब्लॉक हो रहा है, थोड़ा आप बाहर रहिए गेंदबाज से। इस ओवर के लिए अच्छी बात है कि जब इन स्ट्राइक पर है, लेकिन मृणाल ने काफी अच्छी शुरुआत करी है। अच्छा मुकाबला होगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच। ओहो, अच्छी गुड लेंथ गेंद। जब इन लंबा शॉट लगाना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। वहां पर अच्छी फील्डिंग दादा द्वारा, स्टंप पर गेंद टकराई, लेकिन तब तक सेफली अंदर आ चुके थे विष्णु, कोई नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत की है मृणाल ने इस ओवर की। बहुत ही निर्णायक ओवर है दोनों टीमों के लिए। मैच एक रोमांचक स्थिति पर जाता हुआ। एस वॉरियर का रन रेट है 7.8 और उन्हें अभी जीतने के लिए 11 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। 7.96 रन रेट है, रिक्वायर्ड रेट इज 10.91। लगभग 11 की गति से उन्हें रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों में 20 रनों की।
उसे मारना चाहो सा किनारा लगा और ये बहुत ही बड़ी सफलता जीसी बॉयज के लिए जिसकी उन्हें तलाश थी। जब इन एक सेट बैट्समैन थोड़ी सी चूक यहां पर तालमेल में कमी, गलत कॉल और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसे सुसाइड कहा जा सकता है। इतना अच्छी इनिंग बिल्ड करी जब इनने, काफी नाखुश होंगे कि आखिरी तक नहीं रुक पाए, लेकिन फिर भी कहना होगा कि अच्छी बल्लेबाजी की, गेम में वापसी कराई। पहली 2 धीमी ओवर के बाद अच्छी वापसी कराई एस वॉरियर की, किंतु प्रेशर बिल्ड होता हुआ उन पर उस प्रेशर में गलती कर बैठे, गलत कॉल और ये आउट। फिर एक बार जीसी बॉयज की इस गेम में वापसी। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दोनों टीमें अच्छी फॉर्म में कांटे की टक्कर होगी, जो हमारा प्रेडिक्शन था वो सच साबित हो रहा है। काफी अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच, अच्छी फॉर्म में 2-2 मैच जीतकर इस मैच में खेलने उतरे थे दोनों। अब सामना करेंगे निनाद रावल, अच्छे बल्लेबाज, ओपनिंग करी थी पिछले 2 मैचों में, आज 2 डाउन आए हैं। कुछ रणनीति जरूर बनाई होगी करण बंसल ने। ओहो, फुल लेंथड गेंद से मार दिया वहां पर, डीप थर्ड मैन ने फील्ड किया, 1 रन। आठ गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता, 18 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 8 बॉल्स। मृणाल जो कि अब तक बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी की है, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़े रन बड़े शॉट मारने की। जैसे मैंने कहा था कि काफी अनुभवी खिलाड़ी, क्रिकेटिंग सेंस है उन्होंने जान लिया, अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की, बिल्कुल दिशा से नहीं भटके। नतीजा आप देख सकते हैं कि मैच में जीसी बॉयज की वापसी होते हुए, लेकिन एस वॉरियर भी ताकत रखते हैं कि यहां से भी मैच अपनी ओर खींच सकते हैं। टग ऑफ वॉर बिटवीन 2 टीम्स, कभी पलड़ा इस ओर कभी इस ओर। ओहो, लंबा शॉट मारने की कोशिश, हवा में गेंद और ये पकड़ लिया है पॉइंट में जितेंद्र पाठक, जिन्होंने पिछले ओवर में जीसी बॉयज की वापसी करवाई थी। फील्डिंग में अच्छा योगदान। ओहो, ये मैच काफी रोमांचक होता जा रहा है। यहाँ पर एस वॉरियर थोड़े से बैकफुट पर, विष्णु जो उनके अच्छे बल्लेबाज थे पवेलियन की ओर जाते हुए काफी निराश होंगे। अच्छा प्रदर्शन किया था उन्हें पिछली 2 मैचों में, किंतु इस बार थोड़े से चूके। हालात ही ऐसे थे कि उन्हें बड़ा शॉट खेलना ही था, गेंद थोड़ी सी बाहर, अच्छा संपर्क नहीं, बाहरी किनारा। पॉइंट में जितेंद्र पाठक ने कोई चूक नहीं, आसानी से कैच और वापस भेज दिया पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज मनोज कुमार यादव काफी अच्छे गेंदबाज है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं वो, काफी दबाव होगा उन पर, लेकिन महान खिलाड़ी है, दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने की खासियत रखते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, ओहो, कवर्स की दिशा में खेलना था और ये बहुत ही जबरदस्त आउट। क्या बात है, जीसी बॉयज के खेमे में खुशी की लहर, फील्डर्स के कंधे ऊपर उठ गए। एक खुशी की लहर, एक उत्साह और एक झटका एस वॉरियर की पारी मानो पत्तों ताश की गड्डियों की तरह फिसलती हुई। अब कप्तान खुद करण बंसल मैदान में आए हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। इस इनिंग की आखिरी ओवर है और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। मेरे ख्याल से जितेंद्र पाठक जो इससे पहले ओवर करी थी और मृणाल खजूरिया, इन दोनों ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। जो मोमेंटम, जो पलड़ा इस वॉरियर का भारी था, अपनी ओर खींच कर लाए हैं। बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ग्राउंड काफी बैट्समैन फ्रेंडली है, कुछ भी हो सकता है। बॉलिंग करेंगे दादा जो अनुभवी गेंदबाज है, उनका मुकाबला करेंगे करण बंसल, वो भी काफी अच्छा अनुभव रखते हैं क्रिकेट का। ये फुल टॉस गेंद, उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डिंग अच्छी रही वहां पर, जल्द से थ्रो फेंक दिया है बॉलर की दिशा में ताकि बैट्समैन दूसरा रन ना ले पाए। अब निनाद रावल सामना करेंगे शुभादीप मित्रा का।
5 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, 17 रन्स रिक्वायर्ड इन 5 बॉल्स। स्लॉग में गेंद डाली, उसे कवर्स की दिशा में खेला, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के यहाँ पर 2 रन लेने की कोशिश, और ये चांस था, चांस बन सकता था। 2 रन, फिर एक बार स्ट्राइक रिटर्न करेंगे निनाद रावल। अब है 15 रनों की आवश्यकता 4 गेंदों में। एक बड़ा शॉट बहुत जरूरी है इस ओवर के लिए, अगर वापसी करनी है, थोड़ा सा गेम में बना रहना है तो। दादा चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैच सील किया जाए। फिर एक बार लोअर फुल टॉस, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ और अंपायर का निर्णय आउट। जैसे कि मैंने कहा था कि दादा चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैच क्लोज किया जाए, और ये निर्णायक गेंद थी। गेंद थोड़ी फुलर लेंथ थी, अंदरूनी किनारा, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर कोई चूक नहीं की, और एक सफलता जीसी बॉयज के लिए। इस ओवर ने काफी जबरदस्त शुरुआत की थी, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में कोई बैट्समैन वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। शायद ये मैच का दबाव है, प्रेशर है। अब आए हैं डागर साहब, उनके कंधों पर एस वॉरियर का दारोमदार। क्या अपने टीम की नैया पार करा पाएंगे? 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगा पाएंगे। 6 रनों के हैट्रिक की आवश्यकता, सिक्सर के हैट्रिक की आवश्यकता यहां पर, अगर एस वॉरियर को मैच जीतना होगा, या फिर एस वॉरियर ज्यादा से ज्यादा रनों का गैप कम करना चाहेंगे, या चमत्कार हो सकता है यहां पर 3 गेंदों में 3 सिक्सर। 2 मिनट रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा सा क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, और एक विकेट। इसे कहते हैं जबरदस्त गेंदबाजी, और ये दबाव काफी गहरा है एस वॉरियर पर। अब 2 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। अगर फेयर डिलीवरी करते हैं तो एस वॉरियर के लिए मैच जीतना काफी नामुमकिन है, किंतु एक्स्ट्रास देते हैं, 9 बॉल, कुछ अनिश्चितता होती है, तो शायद एस वॉरियर जीत सकती है। सुमित स्ट्रेच करते हुए काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी शांति, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है जीसी बॉयज के प्लेयर्स के चेहरों पर। वही एस वॉरियर तनाव में, अच्छी फाइट दी थी उन्होंने, अच्छा मोमेंटम था, किंतु जब इनके विकेट के बाद मानो पारी फिसलती गई। और लंबा शॉट मारने की कोशिश पूरी तरह से चुके, गेंद टकराई बॉडी से बैट्समैन के, 1 रन चुरा लिया उन्होंने। आखिरी गेंद का सामना करेंगे करण बंसल, 15 रनों की आवश्यकता एक बॉल पर। ये जीसी बॉयज की तीसरी लगातार विक्ट्री होगी, विजय की हैट्रिक कहा जा सकता है। और ये इसी के साथ ये जीसी बॉयज ने मैच 2 रन भाग लिए, इन्होंने 2 रन भाग लिए, और जीत का अंतर थोड़ा सा कम हुआ जीसी बॉयज का 2 रनों से, लेकिन खुश होंगे, दोनों टीमों ने जबरदस्त मैच लिया, और ये मैच